Hello students. In the previous lecture we had already seen how to create a table, how to create a table, how to insert a value in table, how to edit the value from the table, and how to delete the table value from the table, or how to delete a record from the table. That we have seen in the previous lecture. In this lecture we are going to study about the query creation, how to create a query, what is the use of query creation, why this query creation is important in database. That we are going to study in this lecture. So we have already seen in the previous lecture that query is nothing but it is used to retrieve a specific record from your table. If you want to retrieve a specific value from your table, then instead of searching it throughout the table and wasting your time, it is easy if you write a query. If you write the query, you all will get the resultant output without wasting of your time. Okay, so and we will see the different steps for creation of your query by using the query wizard window. So now we will study the steps for creating the query wizard. This is very easy. Actually the steps written are very lengthy, so you all might be quite confusing that this point is very difficult, but in practical when we will do it, this is very easy. You all will feel it very easy, and this is very easy database creation. So now we will see how to create a query, or what are the steps of query designing by using the wizard. Okay, so first again for that you will need to open your database. When you will open the database, first when we were creating the table, at that time we had in the left pane we had clicked on the table option. Now we are creating a query, so we will click on query. Okay, in the left pane what you all have to select, which object you all will select the query. Then when you will click on the query, then in the right pane you all will see the different options. From that you will click on use wizard to create query. Which option you all will click on? Use wizard to create query. You will have to click on this option. It means you all will have, what is wizard actually, in which you all will have the step by step instructions given to complete your particular task. Okay, so how to create, how to perform this task, that will be given in this wizard. So you all have to follow that task. Then you all will have to click on the create query wizard. So after that you all have to give the name of the table. Okay, from that now there are number of tables. So in your database there are number of tables. तो आपको क्या करना है कि जो आपको टेबल चाहिए वो नेम आपको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है. Select the name of the table and shift the fields from available field to field in column of field row. Select one by one field to be displayed in the query output. Set each field visible property on. You can type alias for each field. अभी ये स्टेप में आपको क्या करना है कि जो टेबल आपको चाहिए क्यूरी में, वो टेबल के नेम आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अवेलेबल फील्ड शिफ्ट में से आपको क्या चूज करना है, फील्ड शिफ्ट ऑप्शन में से अवेलेबल फील्ड ऑप्शन चूज करना है, और उसमें आपको फील्ड ऑफ कॉलम और रो क्या करना है, सिलेक्ट करना है. फिर उसमें आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको फील्ड क्या करनी है, जो क्यूरी की विंडो रहेगी या क्यूरी का आउटपुट है उसमें आपको डिस्प्ले करनी है. तो उसके लिए आपको फील्ड की जो विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है वो ऑफ रहती है, तो वो क्या करनी रहती है, ऑन करनी रहती है. और फिर ऑन करने के बाद क्या होगी कि आप जो भी फील्ड या जो भी टेबल का रो और रिकॉर्ड कॉलम ले रहे हो, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर आउटपुट, क्यूरी आउटपुट. ओके, तो फिर इसमें क्या किया जाता है कि आपको अगर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स का पर्टिकुलर फील्ड का या पर्टिकुलर कॉलम का कैलकुलेट करना है, तो दैट यू विल कैलकुलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला. अभी सपोज मेरा डेटाबेस है, स्टूडेंट का डेटाबेस है, तो मेरे पास स्टूडेंट का डेटाबेस जो भी मार्क्स एंटर किए गए हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स, वो मेरे डेटाबेस में स्टोर है पर्टिकुलर स्टूडेंट के. फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टूडेंट के डेटाबेस में से उसके परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं विद मार्क्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनकी टोटल चाहिए, टोटल मार्क्स उसको कितने हैं वो कॉलम चाहिए, दैट इज़ वो फील्ड मुझे चाहिए टोटल मार्क्स.
उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि उसका अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो फिर मुझे उसका एवरेज चाहिए कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, दैट सब्जेक्ट बाय डिवाइड बाय दैट नंबर ऑफ वैल्यू। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल निकालनी। सपोज यार हमने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 सब्जेक्ट्स है, उसकी मुझे टोटल निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगी, फील्ड कॉलम टाइप में मैं क्या करूँगी, उनकी एडिशन परफॉर्म करूँगी। एडिशन आने के बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज निकालूंगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला। परसेंटेज की फॉर्मूला आपको पता है, वो कॉलम जिसमें हमें निकालना है उसके ऊपर इक्वल टू देना है, ये जहाँ पे टोटल है उसको सिलेक्ट करना है, देन डिवाइड बाय 3, तो रिजल्टेंट आउटपुट आएगा। और फिर ये क्यूरी हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि रन क्यूरी ऑप्शन प्रेस करेंगे, और रन क्यूरी करने के बाद या फिर शॉर्टकट की F5 फंक्शन की यूज़ करके हम हमारा जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यू ऑल हैव अंडरस्टूड, यहाँ पे आपको समझ में आया है क्या क्यूरी क्रिएशन कैसे करना है, कि जो जो टेबल्स आपको चाहिए पहले आपको वो टेबल सिलेक्ट करके लेना पड़ता है, फिर उसके बाद ईच कॉलम एंड ईच रो वन बाय वन यू आर विल नीड टू डिस्प्ले इट इन योर क्यूरी आउटपुट्स। उसके लिए आपको जो फील्ड की विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है उसको कहाँ पे सेट करना है, ऑन पे सेट करना है। फिर आप टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। यह एक क्यूरी है जो हम फायर कर रहे हैं। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल है, पर हमने एक एग्जांपल लिया है किसका, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। नाउ हाउ वी विल परफॉर्म इट एग्जैक्टली। ये देखो अभी हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया था लास्ट इसमें टेबल्स में, उसमें हमने क्या किया था, क्रिएट किया था रोल नंबर नेम। अभी यहाँ पे देखो उनके मार्क्स एंटर किए गए, ओके, यहाँ मार्क्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, उनके मार्क्स दिए गए। अभी मेरे पास 2 टेबल्स थे, एक मार्क्स का टेबल आया, एक नेम इंडिविजुअल डिटेल्स का टेबल है, मतलब एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है और एक मार्क्स का रिकॉर्ड है। तो दोनों टेबल्स मैंने क्या किए, सिलेक्ट किए, क्योंकि मुझे क्यूरी क्या करनी है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे स्टूडेंट के नेम्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे उनके मार्क्स भी चाहिए। तो मुझे ये दोनों टेबल सिलेक्ट करके वो दोनों टेबल्स लिए मैंने, यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों टेबल लिए मैंने। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, फील्ड सिलेक्ट किए जो मुझे टेबल में रिक्वायर्ड है। अभी स्टूडेंट टेबल में हमने कौन से फील्ड्स क्रिएट किए थे, रोल नंबर, नेम, सिटी और मोबाइल नंबर, ये 4 किए थे इन द स्टूडेंट। और मार्क्स में कौन से किए थे हमने, उनका ई नंबर, और फिर उसके बाद दैट इज उनका मार्क्स की प्राइमरी की, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ऐसे उनका सेकेंड टेबल क्रिएट किया था। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दोनों टेबल यूज कर रही हूँ तो मुझे प्राइमरी की इंटरचेंज करनी पड़ती है ना। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, ये मैं आपको बोलती हूँ। प्राइमरी की मतलब क्या रहता है, हर एक टेबल में एक फील्ड ऐसी रहती है कि उसकी वैल्यू यूनिक रहती है, उसकी वैल्यू अदर टेबल्स के साथ मैच नहीं होती या फिर अदर रिकॉर्ड्स में इंटरप्ट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट टेबल कंसिडर करते हैं तो स्टूडेंट टेबल में कौन से रिकॉर्ड्स हैं, रोल नंबर है, नेम है, सिटी है और मोबाइल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर क्या रहता है, प्राइमरी की रहती है। क्यों प्राइमरी की रहती है, क्योंकि रोल नंबर 1 एट ए टाइम एक ही स्टूडेंट को मिलता है, मोर देन 1 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास डजंट गेट द सेम रोल नंबर। ऐसा है क्या एक क्लास में 2 लड़के या 2 से ज़्यादा लड़कों का सेम रोल नंबर है, नहीं है। एल्स अगर मैंने नेम देखा तो एक क्लास में एक नेम के 2 लड़के भी रह सकते हैं ना। सपोज राज, एक क्लास में एक ही राज रह सकता है क्या, नहीं, एक क्लास में मोर देन 1 राज रह सकता है। मोर देन 1 स्टूडेंट का सिटी सेम हो सकता है। तो ये उनकी प्राइमरी की नहीं हो सकती। प्राइमरी की मतलब क्या, जिसकी वैल्यू यूनिक रहेगी, पूरे क्लास में उसकी वैल्यू यूनिक ही है, दूसरों के पास उसका डुप्लीकेट कॉपी नहीं है या वो वैल्यू दूसरों के पास नहीं है, दैट इज यूनिकनेस, देन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। तो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी क्या हुई मेरी, रोल नंबर। हमेशा प्राइमरी की के आगे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स में उसकी प्राइमरी की का सिंबल आता है। देखो यहाँ पे रोल नंबर को आया है, नेम, सिटी, मोबाइल नंबर को नहीं है, तो ये उसकी प्राइमरी की हुई है। वेर एज मार्क्स टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, ई नंबर, ये उसकी प्राइमरी की है, बाकी ये उनके रिकॉर्ड से।
अभी उसके बाद यहाँ पे क्या किया, ये लाइन शो की गई है क्यूरी में, तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। ये एक इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको रिलेशनशिप शो करनी पड़ती है। इट मीन्स अभी मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स हमें शो करना है। ओके, दैट मीन्स स्टूडेंट इज डिपेंडेंट अपॉन मार्क्स और मार्क्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट। कौन किसकी किस में किसकी प्राइमरी की जाएगी, स्टूडेंट की प्राइमरी की किस में जाएगी, तुम्हारे मार्क्स में, क्योंकि हमें कैसे रिकॉर्ड चाहिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, I will write the primary key of student table in the table of marks, and I will join the two. You all can see this, I have joined. ये रोल नंबर और ये रोल नंबर को मैंने क्या किया है, रिलेशनशिप शो की है कि ये रोल नंबर कहाँ से आया है, तो ये स्टूडेंट टेबल से आया है। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, one to one, one to many, many to many. These are the three types of relationship which is followed in your database. तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप शो की गई है। ओके, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, प्राइमरी की मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है पूरे रिकॉर्ड में, पूरे डेटाबेस में उसकी वैल्यू यूनिक ही रहेगी, वैसे फील्ड को क्या कहा जाता है, प्राइमरी की। पर्टिकुलर टेबल में उसकी वैल्यू यूनिक रहना, दैट इज नथिंग बट द प्राइमरी की। ओके, फिर वो किया है। अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, नेम, फिर मैंने क्या किया, उनके मार्क्स एंटर किए। नेक्स्ट कॉलम कौन सा चाहिए था मुझे, डेट का कॉलम चाहिए था, देन दैट इज फिजिक्स प्लस सॉरी टोटल का चाहिए था, तो ये मैंने टोटल के लिए किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का एडिशन, और यहाँ पे उनका परसेंटेज, तो तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। और उन सबकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी मैंने क्या किया है, सेट टू यस, दैट इज टिक किया है मैंने, मतलब जो भी चेंजेस होगा वो दैट विल बी डिस्प्लेड टू अस। दिस इज हाउ you will have to perform the query creation in your query wizard. Okay, so have you all got it, how to create a query wizard? Now next is the form creation. Now how to create a form. Now form creation is nothing but form is an object which allows entering the data and editing and deleting the existing data from the table. It consists of format styles and widgets like radio button, list box, which provide easy and systematic way to insert the record in the table. Form is used to collect the data from the user. Now what is form creation? फॉर्म क्रिएशन मतलब क्या रहता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जाता है, यूज़र को डेटा एंटर करने के लिए अलाउ किया जाता है, और फिर जो डेटा एंटर किया जाता है बाय यूज़र, वो डेटा हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल। फिर उसमें क्या होता है कि हम जब डेटा राइट करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करते हैं, रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इजीली एंड सिस्टमेटिकली वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। सो जनरली इतना याद रखना है कि फॉर्म क्रिएशन में क्या किया जाता है कि फॉर्म मतलब क्या रहता है, तो यूज़र के पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म्स यूज़ करते हैं। सो form is nothing but form is used to collect any type of data from the user के पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म यूज़ करते हैं। So now what are the different steps which are used to create a form? We will study this. Now in the next point we are going to study how to create a form. अभी फॉर्म कैसे क्रिएट करें, सिमिलरली जैसे हमने क्यूरी क्रिएट किया था, डेटाबेस ओपन करके लेफ्ट पेन में से अभी हम फॉर्म क्रिएट करना है तो किसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर राइट पेन में जब हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो राइट पेन में से हमें क्या क्रिएट करना, चूज करना पड़ेगा, क्रिएट फॉर्म। सबके लिए प्रोसीजर सेम है, अगर टेबल करना होगा टेबल पे क्लिक करो, क्यूरी करना है क्यूरी पे करो, फॉर्म करना है फॉर्म पे, रिपोर्ट जनरेट होगा तो रिपोर्ट पे। अभी हम फॉर्म देख रहे हैं तो हमें किस पे क्लिक करना है, फॉर्म पे, और राइट पेन में से हम क्या चूज करने वाले हैं, क्रिएट फॉर्म। फिर अभी फॉर्म के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें नेम ऑफ टेबल देखना है, कौन से टेबल है, कौन सा टेबल मुझे नेसेसरी है फॉर्म क्रिएशन में, दैट टेबल आई विल सिलेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस एंड हम क्या करेंगे, अवेलेबल फील्ड्स टू फील्ड्स इन द फॉर्म पे चेक करके क्लिक करते हम क्या करेंगे कि अरेंजमेंट करेंगे कि फ्रॉम मेन फॉर्म टू द प्लेसिंग कंट्रोल्स हमें हर एक इसमें क्लिकिंग बटन चाहिए, नेक्स्ट का बटन शो करना है,
और फिर एट द लास्ट हमें फॉर्म का नेम दे के फॉर्म कंप्लीट करना है। ओके तो इससे हमारा क्या होगा, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। पर अगर हमें फॉर्म में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टू ऐड न्यू रिकॉर्ड वी विल क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड आइकॉन। न्यू रिकॉर्ड आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे और फिर नेविगेशन टूल बार पे हमें क्या दिखेगा, वहाँ पे बॉटम साइड में नेविगेशन टूल बार है। यह नेविगेशन टूल बार पे हमें क्लिक करके हमें क्या करना है, रिकॉर्ड फिल करना है और लास्ट में सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय दिस वी विल सेव आवर रिकॉर्ड। ये देखो ये हमारा फॉर्म क्रिएशन है ना। फॉर्म क्रिएशन में रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स है, टेबल के इसमें हमने दिया था टेक्स्ट, सो दिस इज टेक्स्ट बॉक्स फॉर रोल नंबर, फॉर नेम, for city and mobile number. When you all have to enter the record, you all have to click on enter record and then you all have to enter in this. Okay, simple. You all can enter the data in the table in the form and then you all have to click on save. When you will save, the records will be saved. Now we have saving of 7 records we have already saved in the table. So this is how we will have to save the record in the table. Now next is the report generation. Now how to generate a report. So रिपोर्ट जनरेशन मतलब क्या कि जो भी हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन किया है या फिर इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन हमें रीडेबल फॉर्मेट में यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर डिस्प्ले करना होगा तो वो हम रिपोर्ट्स में करते हैं। रिपोर्ट्स में क्या किया जाता है कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार रीडेबल फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम राइट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट हमारे जनरेट हुए तो वो हमें क्या करते हैं कि डिफरेंट डिसीजन जो भी लेना है मैनेजमेंट के वो लेने में हेल्प आउट करते हैं। तो रिपोर्ट्स मतलब क्या रहता है कि यूज़र रीडेबल फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में हम जो भी डेटा हमारा है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूज़र को, देन दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट। रिपोर्ट इज नथिंग बट इट इज़ अ जनरेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा इन द प्रिंटेड फॉर्म। तो वो कैसे करेंगे हम रिपोर्ट जनरेट? अगेन सिंपल, लेफ्ट पेन में से हमें रिपोर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, राइट पेन में से हमें क्या लेना है, क्रिएट रिपोर्ट। फिर जो भी टेबल हमें चाहिए वो फील्ड हम टेबल की क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर नंबर ऑफ फील्ड सिलेक्ट करने के बाद जो भी टेबल हमें चाहिए उसके नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वी विल प्रोवाइड अ लेबल फॉर ईच फील्ड, ओके, दैट फील्ड विल बी डिस्प्लेड इन योर रिपोर्ट। और फिर उसके बाद हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन। फिर उसके बाद हमें क्या होगा कि हमें रिपोर्ट कैसे चाहिए, ग्रुप वाइज चाहिए या ग्रुपिंग लेवल के ऊपर चाहिए, कैसा चाहिए, मतलब सिटी वाइज चाहिए, उनके कैटेगरी के अनुसार चाहिए, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन और हाउ वी वांट to group the records that we have to select and then we will click on the next button. फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो रिपोर्ट हमें है वो हमें कौन से ओरिएंटेशन में चाहिए, वेदर लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए या फिर पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। मोस्टली हमें लेआउट चूज़ करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट को टाइटल असाइन करना पड़ता है। रिपोर्ट का टाइटल असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। वंस वी क्लिक ऑन द फिनिश देन what will happen, the data or the value of your particular record will be done. In this way your report creation will be done or your report will be generated. Then whatever the report is generated, that report will available to the user only in the read mode. read mode में ही वो क्या होगा, आपको डिस्प्ले किया जाएगा, आप उसमें कुछ राइट नहीं कर सकते हो। और रिपोर्ट जनरेट होने के बाद वो सिर्फ रीड मोड में रहेगा, यू हैव नो राइट टू मेक एनी चेंजेस इन इट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट जनरेट किया है मैंने, रोल नंबर 107 का, उसका नेम ये है, हाँ उसका नेम ये है, उसकी सिटी ये है, फिर अकॉर्डिंग टू सिटी हमने किया है। तो अहमदनगर में ये 2 रहते, बीड में ये रहते, यहाँ पे देखो यू आर हैव टू सिलेक्ट द ग्रुप वाइज रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, सिटी वाइज सिलेक्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे रिपोर्ट कैसे आया, सिटी वाइज आया। फर्स्ट सिटी अहमदनगर, तो अहमदनगर में कौन रहते हैं, 107 एंड 104 रहते हैं। 2 records have been found in अहमदनगर।
बीड़ में 1 रिकॉर्ड है, पुणे के 1 रिकॉर्ड है, सोलापुर के 3 रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। तो पर्टिकुलर सिटी वाइज जितने नंबर ऑफ सिटीज अवेलेबल रहेंगे उतने के रिपोर्ट्स हमें डिस्प्ले होगी ओनली इन द रीड मोड, नॉट इन द राइट मोड। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, रीड मोड में जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा उसमें से हम रिपोर्ट जनरेशन कर लेंगे। सो दिस इज द नाउ दैट वाज बाय यूजिंग विजार्ड। नाउ वी विल सी द स्टेप्स टू क्रिएट द रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू से हमें अगर रिपोर्ट जनरेट करना होगा तो वो रिपोर्ट हम कैसे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास सेव है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमारे लैपटॉप में रहेगा या कंप्यूटर में स्टोर रहेगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट किया है उसको ओपन करके हम रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद राइट पेन में से हम रिपोर्ट क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू इस पर क्लिक करेंगे। क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि विंडोज़ की सेटिंग करनी है। ओके, विंडोज़ की सेटिंग करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी जहाँ पे हमें फील्ड का नेम असाइन करना है और फिर इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और वो विंडो क्लोज करनी है। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड टेबल आपके रहेंगे वो टेबल और उसकी जो भी फील्ड्स रहेगी सेम टेबल्स की वो हमें क्या होगी, डिस्प्ले की जाएगी हमारे रिपोर्ट में। सेम मेथड है जैसे हमने वहाँ पे किया था बाय यूजिंग विजार्ड, वैसे ही करना है पर ये सिर्फ डिज़ाइन व्यू में करना है। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप समझ में आई है कि डेटाबेस ओपन करना है, उसमें से रिपोर्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है और राइट पेन में से हमें किसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि विंडोज़ की प्रॉपर्टीज सेटिंग विंडोज़ में जाना है, फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो सिलेक्ट करना है, टेबल के नेम सिलेक्ट करना है एंड जो भी सेव क्यूरी है वो भी लेना है। ठीक है, ये तीनों लेने के बाद एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी जिसके ऊपर हमें फील्ड का नेम देना है और इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे जो भी टेबल हमने सिलेक्ट किए उसकी जो भी फील्ड्स रहेगी वो हमें डिस्प्ले होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें क्या कौन सी क्यूरी करनी है कि उसका टोटल कैलकुलेट करना है और उसके परसेंटेज जनरेट करना है। फिर मैं क्या करूँगी ना, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी कि टोटल कैलकुलेट करूँगी बाय यूजिंग द लेबल एंड चेंज प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। लेबल की चेंज प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं वहाँ पे उसकी जो भी डेटा फील्ड की वैल्यू रहेगी या फिर डेटा फील्ड का जो भी टाइप रहेगा दैट टाइप विल बी फिक्स्ड और उसकी पर्टिकुलर डेटा फील्ड का टाइप मैंने चूज़ किया है तो उसकी वैल्यू मैं क्या करूँगी, वैल्यू फील्ड और फॉर्मूला डिसाइड करूँगी। और फॉर्मूला के ऊपर से क्या होगा कि उसका जो भी इनसाइड की फील्ड में एक फंक्शन विजार्ड स्टार्ट होगी और सम फंक्शन कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे कि एक फील्ड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाजू में वहाँ पे हम क्लिक ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हमें हमारा जो भी रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो पेज हेडर में है तो उसे हमें कुछ टाइटल असाइन करना पड़ेगा। टाइटल असाइन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव some title for the report in the page header section by using label control and changing its label property to required title। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हेडर पे रिपोर्ट के हेडर पे जाके हम क्या करेंगे, लेबल कंट्रोल से कुछ टाइटल असाइन करेंगे हमारे टेबल को बाय चेंजिंग उसकी लेबल की प्रॉपर्टी के यहाँ पे चेंज करेंगे, हम टाइटल को चेंज कर देंगे और बाय दिस वे वी कैन असाइन द टाइटल टू आ रिपोर्ट। फिर उसके बाद रिपोर्ट अभी जनरेट हो गया है, अभी नेक्स्ट उसका मुझे एग्जीक्यूशन देखना है या फिर आउटपुट देखना है। तो आउटपुट में कैसे देख सकती हूँ, एग्जीक्यूट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जीक्यूट रिपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो मुझे आउटपुट डिस्प्ले होगा। वो आउटपुट रीड ओनली मोड में रहेगा, उसमें हम कौन से भी राइट के ऑप्शंस या राइट परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है तो एडिट डॉक्यूमेंट ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है और फिर जो भी आपको राइट करना है दैट यू ऑल कैन राइट और यू ऑल कैन सेव इन दैट और फर्दर यूज़ के लिए उसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल के सेव कर सकते हो। दिस इज़ हाउ रिपोर्ट इज़ जनरेटेड। ये देखो ये फंक्शंस है, डिज़ाइन व्यू में जो फंक्शंस हमें यूज़ करना है। अभी हम एडिशन कर रहे थे, ये 3 सब्जेक्ट्स थे
एडिशन करना है इसलिए मैंने यहाँ से सम लिया है। वॉट एवर फंक्शन, तुम्हें जो भी फंक्शंस करना है, एडिशन रहेगा या फिर उनका लॉगरिथमिक वैल्यू चाहिए, पावर चाहिए, साइन चाहिए, जो भी आपको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका ये रिपोर्ट जनरेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड्स विच यू all have selected and depending upon the values which you all have choose, and in this way this will be the design view of your particular report। फिर ये पेज हेडर में आप क्या कर सकते हो, टाइटल असाइन कर सकते हो आपके रिपोर्ट को। अभी मैंने यहाँ पे टाइटल दिया था रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट 11C का रिजल्ट है, ऐसे दिया था। फिर डिटेल्स में कि क्या डिटेल्स थी कि मुझे उनका रोल नंबर, उनकी टोटल चाहिए थी, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की। सो दिस इज़ हाउ द रिपोर्ट्स विल बी जनरेटेड इन द डिज़ाइन व्यू। ये देखो यहाँ पे अभी सब स्टूडेंट्स क्या है, रोल नंबर 1 is having this much marks, total is this much, 2 these are marks, total is this, and so on। So in this way this is the print view of your report and this is the design view of your report। So in this way we have seen about the report generation। So in today's lecture we have seen database के बहुत सारे कंसेप्ट हमने देख लिए कि टेबल क्रिएट कैसे करना है, टेबल में वैल्यू इंसर्ट कैसे करना है, वैल्यू डिलीट कैसे करना है, वैल्यू एडिट कैसे करना है, फिर हाउ टू राइट द क्यूरी, हाउ टू डिज़ाइन क्यूरी by using the query wizard। After that we have seen how to create a form by using a form wizard, and we have also seen how to create a report by using the report wizard, and also to create a report by using the design view। So we have seen the different concepts of creating of your tables, queries, forms and reports। In the next lecture we will start with introduction to data model। Thank you।